Hello viewers, in today's session we would be looking into the calculation of LCM for two numbers. So LCM basically refers for least common factor, okay, and we would be using the concept of Vedic maths. Prior to this discussion I have shared the videos for calculation of SCF. I have shared the video for two values and three values, or two numbers or three numbers that can obviously extended to n number of digits also. Same way अगर हमें LCM निकालना है, simplest beginning से कर रहे हैं, so we have started with the calculation for LCM using two numbers, and the sutra that will be used for calculation is basically urdhva तिर्यक भ्याम. So urdhva तिर्यक भ्याम मीन्स वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज. नाउ इसके पहले हमने जो है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम का एप्लीकेशन जो है डिवीजन में भी देखा था, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखा था. आई हैव ऑलरेडी शेयर दोज वीडियोस इन माय चैनल, सो यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर देम कि आइडेंटिफाई कि उसका एप्लीकेशन हमने कैसे किया है. आज के इस डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम को हम LCM के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर द सेट ऑफ एग्जाम्पल्स. Suppose we take up the first problem, that is 15 and 27. Okay, now हम क्या करेंगे, 15 upon 27 लिख लेंगे. 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 5s are 15. 27 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 9s are 27. Now 3 is common for the numerator and the denominator, हम कैंसिल कर लेंगे. फाइनली LCM की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हम ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम यूज़ करेंगे. ईदर वी कैन गो विद दिस वे और दिस वे. इसका मतलब हम 15 इंटू 9 करेंगे और 27 इंटू 5 करेंगे. ओके, बोथ द कॉम्बिनेशन शुड गिव अस द सेम सोल्यूशन इफ़ वी हैव डन इट करेक्टली. अदरवाइज अगर इक्वल नहीं आ रहा है, सो दैट इज़ अ सिग्नल दैट ओके वी हैव डन सम मिस्टेक. So for both the cases we are getting the value as 135. Okay, so हमने पहले क्या किया, हमने फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए, फैक्टर्स जो कॉमन थे उनको कैंसिल आउट कर दिया. जो बाकी वैल्यूज़ हैं उसमें से हम कोई भी एक कॉम्बिनेशन यूज़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम यूज़ करेंगे. सो दैट विल गिव अस द फाइनल सोल्यूशन ऑफ LCM एज 135. Taking up the next problem, that is 16 and 20. So 16 upon 20, 4 4s are 16, 4 5s are 20. 4 is common, हमने इसको cancel किया. Either go with this combination or with this combination. So LCM आ जाएगा 16 5s are 80 और 20 4s are 80. Both the combination are giving us the same. That validates कि हमारा calculation ठीक है. So that gives the final value of LCM. Taking to the third problem, that is 43 and 49. So we write it as 43 and 49. 43, I don't think it is going to come up into any tables. Prime number है, so we can write it as 43 into 1. 49 we can write it as 7 into 7. तो basically it will also come as 49. तो हम इसको better लिख दें 43 into 1 and 49 into 1, क्योंकि हमारे कोई common factors हैं नहीं. अगर हमें LCM निकालना होगा either this combination or this combination. सो अगर हमें LCM निकालना है तो हमने करना है 49 इंटू 43, वाइसी वर्सा इट विल ऑल्सो कम आउट टू बी द सेम. मल्टीप्लाई करना है, कॉमन बेस है 40, सो इधर वी कैन यूज़ निखिलम और वी कैन यूज़ लाइक सिंपल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम. तो हम कर देंगे 49 इंटू 43, सो दैट विल बी 16 12 36 and this will be 9 3s are 27. So ये आ जाएगा 7 0 21. So the answer is 2107. कोई भी common factor नहीं है, so the numbers will be multiplied to each other. Taking the last problem, that is 84 and 60. 84 and 60 ले रहे हैं.
सो फैक्टर्स निकाल लें. सो द फर्स्ट विल बी 4 into 21 and for 60 it will be 4 into I think 12 नहीं होगा, 60 4 1s are 4 4 5s, so that is 4 into 15. Okay, now 4 into 15 कर देंगे, 15 4s are 60. I think we can identify some more common factors. 4 4 हम cancel कर देंगे. 21 can be written as 3 into 7 and 15 can be written as 3 into 5. 3 3 cancel हो गया. Now we are left with 7 and 5. Cross multiplication you apply कर लेंगे. So either we can have 84 into 5 or 60 into 7. So 6 7s are 42. ये तो हमें 420 दे देगा and this will be 40 and 42. तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 420. ओके, सो व्हाट वी हैव डन, हमने अगर एलसीएम निकालना है दो वैल्यूज़ के लिए, सिंपल हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, उसके फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेंगे. फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे दे विल बी टिपिकली कैंसल्ड. कैंसलेशन के बाद वी कैन यूज़ ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम एंड ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम मीन्स वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज. बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम हम वर्टिकली और क्रॉसवाइज यूज़ करके हम अपने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ फाइनली द रिक्वायर्ड एलसीएम. So that was all about today's discussion. Do visit my website vedicmathjunction.in. Besides that, subscribe and share your comments. Thanks a lot.